Namaskar, children. This is Disha ma'am, and yes, we are going to learn English. What was yesterday's CW? Do you remember? Yes, yesterday we did enrichment activity of chapter number 1, that was on page 21. So, what are we going to do today? मैंने बोला ही था कल क्या करेंगे? Yes, we will be doing one more enrichment activity of a chapter. So without wasting time, let us move for today's session. As you can see, I have the course book of ours, and in that I would want you to open page number 80. Which is that? Page number 80. That is chapter number 5's enrichment activity. Now talking about chapter number 5, what was chapter number 5? It contained detailed description about two different animals. Which one out of that, which one was caracals and another one was pistol shrimp. Do you remember that chapter? Yes, I know that you all know this chapter, pistol shrimp or caracals. कैरेकल्स जो बिल्ली से बहुत बड़ी वाली साइज़ की थी, टाइगर सॉरी लेपर्ड जैसे साइज़ की. एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेंथ, द क्वालिटी of this both animals. And in this chapter, if you know, there was a paragraph of how we the human beings are disturbing their surrounding. हम कैसे उनके सराउंडिंग को, फॉरेस्ट एरिया को या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं या फॉरेस्ट एरिया को कट कर रहे हैं. एंड दिस वे वी आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग देयर एनवायरनमेंट, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न कि जो एनिमल्स हैं वो या तो एक्सटेंट हो गए हैं या एंडेंजर्ड है. राइट, एक्सटेंट और एंडेंजर्ड मीन्स, एक्सटेंट माने जो एनिमल्स दुनिया में अब नहीं रहे, जैसे कि डायनासोर्स हैं. राइट, दे आर एक्सटेंट एनिमल्स. नाउ वी डोंट हैव एनी डायनासोर्स. पहले के युग में थे, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी डायनासोर्स. सो एक्सटिंक्ट, द स्पेलिंग इज EXTINCT, extinct animal. So that extinct animals are the animals which are not now present in the world, right? And endangered, 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 the name itself says that endangered माने ऐसे animal जो danger zone में है, माने जिनकी population है वो दिन दिन कम होती जा रही है. I don't know, you might be very young. Before 4-5 years, Gujarat government and had this campaign of saving the lions of Gir forest. जो हमारा जूनागढ़ का जो गिर है, अगर आप कहीं आपने सुना हो, गिर जंगल जो गुजरात में है, उसमें जो लायंस की जो बोले ना, जो क्वांटिटी थी, जो ब्रीड थी, वो इट वॉज डिटीरियोटिंग, इट वॉज कमिंग डाउन. So Gujarat government ran a whole campaign to help the people कि हम उनके थ्रू जो ये लायंस है, गुजरात के जो शेर हैं, उनको बचा सके, उनको सेव कर सके, सर्वाइव करवा सके उनको. Before 2-3 days I was watching a news channel and the news says that way कि जो गिर के जो लायंस है, जो शेर है वहाँ पे, they are having a unique kind of disease in their body, right? And that is the reason that करीबन कुछ last 3-4 months में मोस्टली अबाउट 60 to 80 लायंस है वो मर गए थे ड्यू टू दैट डिसीज़. दैट इज़ डिसीज इज़ देयर पार्ट, बट देन जब ये कैंपेन शुरू हुआ, इट वॉज बिकॉज टू इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ लायंस इन गिर. सेम वे सेव टाइगर नाम का भी प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट के थ्रू, एंड दैट वॉज ऑल्सो डन टू help to reframe the number of the tigers that we have in India, right? So endangered animals, my children, endangered animals are the animals जिनको danger है अपना ख़त्म होने का, right? So extinct and endangered, these are two things that you must know. चलिए, now what this enrichment activity is telling, the planet Earth is a home to many living beings. Just as we do, animals need food, fresh water,
room to roam, and places of refuge. Conserving and revitalizing wildlife habitat ensures both animals and human to have a healthier future हेड राइट. कंजर्विंग माने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड रिवाइटलाइजिंग माने उनको अपनी क्वांटिटी इम्प्रूव करने का, रिजुनेट करने का मौका देना चाहिए. तो दिस वुड इम्प्रूव अस ऑल्सो, आवर फ्यूचर ऑल्सो, हेल्दियर फ्यूचर हमारे लिए भी होगा और एनिमल्स के लिए भी होगा. वाई? बिकॉज जब मदर अर्थ की बात करते हैं, जब पेड़ पौधों की बात करते हैं, या सनलाइट की बात करते हैं, या वाटर की बात करते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज बेसिक नीड ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, राइट. सो एज यू कैन सी दिस पिक्चर, सी इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर सेट, और जिसकी टैगलाइन है द फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन आवर हैंड्स, राइट. तो हम चाहे तो ये वाइल्ड लाइफ बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, हम आप इस चीज़ से बहुत रिलेट करते हैं. हमारी स्कूल, हम कितनी बार हमारी स्कूल गए हैं, राइट. लास्ट ईयर डू यू रिमेंबर कि मॉस्किटोज़ आए थे, इतने सारे मॉस्किटोज़ पूरी स्कूल में आए थे, राइट. क्यों आए थे? एनी आंसर्स? The answer, my dear children, is because somewhere that whole land, जो जहाँ पे वो ज़मीन है जहाँ पे हमारी स्कूल बनी है, या उसके बाजू के जो पोट्री फार्म है, या वो सब कुछ, the whole land is of some animals living over there, and we are unknowingly disturbing their habitat. वहाँ पे हमने क्या बना दिया? हमने बिल्डिंग्स बना दिए, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने पानी बंद कर दिया, राइट. ग्रास उगा दी, जहाँ हमें चाहिए वहाँ ग्रास उगा दी, जहाँ हमें प्लेग्राउंड चाहिए था वहाँ पे हमने सैंड डाल दी. सो व्हाट वी डिड एक्चुअली इज बाय अननोइंगली वी डिस्टर्ब देयर एनवायरनमेंट, देयर फ्री. इससे आप एक एग्जांपल, सपोज आप अपने घर में रहते हो, राइट. आप अपने आप से रह रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन इफ समबडी कम्स टू योर हाउस, राइट, और आपका पानी का जो मटका है उसको बंद कर दे, या आपकी जो सोने की जगह है, बेड है, उसको वहाँ से बेड को निकाल दे, बाहर फेंक दे. सो द सेम थिंग हैपन्स विद दिस एनिमल्स ऑल्सो. भले वहाँ पे हम जहाँ स्कूल है वहाँ पे कोई ये वाले एनिमल्स नहीं हैं, बट देन टू ऑल्सो दैट होल लैंड इज ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स विच रोम देयर, राइट. हर एक जगह के अलग अलग एनिमल्स होते हैं. ये फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं. हमारी स्कूल जो एक बंजर ज़मीन है पूरी, नॉन फॉरेस्टल लैंड जिसे बोला जाता है, या नॉन कल्टिवेटेड लैंड, so that land also has their own animals, right. And it is because if we disturb their habitat, unme bhi problem aata hai, right. So the picture, as it says, the future of wildlife is in our hands. Try not to disturb the environment jitna humse possible ho. Clear? Chalo. Now, what is the exercise telling? We can also do our bit to protect wildlife and their habitats. Guide Rian and Jian is conserving wildlife and their habitats. वो उनको protect कर रहे, conserve कर रहे. First one, Rian is on a picnic at a beach. He has just finished eating tasty ice cream. What should he do with the wrapper? आप वहाँ बीच में होते तो आप क्या करते? What you would be doing? If you finished ice cream, what do we do? हम generally क्या करते हैं? Generally, everyone, not you, not me, but anyone who goes, generally the first scenario is we take off the wrapper and throw it over there. जहाँ पे भी हम गए, बीच में गए हैं या रोड पे हैं, what do? We throw it over there. No, this is wrong. तो रियान conserve कर रहा है. So what he will do? He will keep the wrapper either in the dustbin. अगर डस्टबिन वहाँ नहीं है तो आपके पास जो आपका जो हैंड बैग होता है या छोटा सा बैग होता है, और आपके पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में आप डाल दीजिए रैपर, एंड देन वेन एवर यू सी द डस्टबिन यू कैन थ्रो दिस रैपर इन दी डस्टबिन, राइट. तो दैट ऑल्सो रियान मस्ट बी डूइंग. ही हैड थ्रोन द रैपर इन दी डस्टबिन. क्लियर? चले नेक्स्ट. रियान फाउंड अ प्लास्टिक बैग एट द बैंक ऑफ अ पॉन्ड. वॉट शुड ही डू विद इट? क्या करना चाहिए? पानी में डाल देना चाहिए, राइट? नो. अगर रियान उस पॉलीथीन बैग को, इफ ही थ्रोज दैट इन दी वाटर और इन दी पॉन्ड, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? दी पॉलीथीन बैग वुड सेटल डाउन इन दी
pond, as you can see in the picture. मैं दिखाती हूँ आपको अभी. See this, right? It is the bottom of the sea, ocean, and in that the polythene is been plastic is been thrown, right? So this all settles down in the bottom of the seas or oceans or lands, and then ये कौन खा जाता है? ये फिशेस खा जाती है, या जो एनिमल्स जो पानी में हैं, दे ईट दिस थिंग, and in the result they die unnecessary, they die, right? So if you have found a plastic bag at the bank of pond, what should he do? He should throw it in the dustbin, or he should carry it back at his home, right? Chalo, next one. Jian was camping in the forest. He put some water over the ashes and burned wood of campfire. Why do you think he did so? मैं एक बात बोलूँ आपको, इफ़ यू हैव सीन द मूवी जंगल बुक, अब तो अभी तो बहुत बार टीवी पे आती है, मोगली वाली, रिमेंबर दैट? यस. सो इन दैट जंगल बुक दे हैव एनिमल्स हैव यूज दैट वर्ड कॉल्ड रक्त बीज. नाउ रक्त फूल. सो व्हाट इज दैट रक्त फूल? दिस इज द फायर. All the wild animals are very very afraid of this fire. वो बहुत डरते हैं इस जंगल की आग से. Now अगर आप कैंपिंग करने गए हैं फॉरेस्ट में, एंड दिस एशेस माने जो हमने आग जलाई है, उसकी जो राख है, वो अगर वो राख हवा के साथ मिल जाती है और किसी एक पत्ते में या किसी एक सूखी घास में छू जाती है, तो देन इट कैन क्रिएट वाइल्ड फायर इन द होल फॉरेस्ट, जिसे फॉरेस्ट फायर कहा जाता है, राइट? सो टू स्टॉप दैट, what we should do आफ्टर कैंपिंग, जब आपके एशेस बर्न हुए हो तो उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, सो दैट देयर शुड बी नो फायर लेफ्ट इन दैट फायरवुड, राइट? इज दैट क्लियर? समझ आया आपको? राइट. सो वाई ही डिड सो? टू अवॉइड द एक्सीडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर, ही पुट दैट वाटर इनटू द firewood. All right, chaliye next one. Rian wants to visit the museum. A bus can take him to the museum, or he can go in his car. Which option should he choose to reach the museum? भाई इसमें तो बहुत easy आंसर है. हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, हम बस में क्यों जाए, राइट? सही ना? नहीं, because he is conserving the nature, he is helping to conserve the नेचर. सी, अब अगर आप अपनी कार में जाते हैं तो एक जना एक कार, या मैक्सिमम दो जने दो कार में, अगर आपको कोई छोड़ने आ रहा है तो, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू गो बाय बस, देन एट अ टाइम एक पूरी बस में देर आर 40-45 पीपल, राइट? सो अगर आप इमेजिन करो कि ये 40-45 लोग अपनी अपनी कार या बाइक्स लेके जाएं, तो what would be more problematic, दिस बस का जो डीजल बर्न हुआ वो, या 40-45 लोग अपने आप से गाड़ी में जाए वो, राइट? सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग इफ दी 40-45 पीपल या 50 पीपल गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस बाय देयर ओन कार. सो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ द बस इज गोइंग ऑन दैट रूट, you must take that bus. So that here also, which option should Rian choose? He should take the bus to the museum, right? Done? Now understood these answers and the concept of the picture, right? Hope from now onwards we will at least try not to pollute our surrounding. Clear? Chaliye, this is Disha ma'am signing off for today. Until we meet tomorrow, bye bye. Take care.